Hello, good evening everyone. So, up till now, we have finished the topic of divisibility. So, now from today, we are beginning the topic of remainder theorem. We'll take complete this also in 5 to 6 parts, and we'll start from basic till the advanced concepts. So, without wasting much time, let's start a video. See, remainder theorem. Now, basically, when I was teaching you divisibility, I told you how to what is quotient, what is remainder, what is divisor, what is dividend. So base you have a little bit idea about what is remainder. We'll discuss this also. I will explain through one example also. So question number one: what remainder can be possible when 25 is divided by 7? So question is saying what is the remainder when 25 is divided by 7? So this everyone knows. 7 threes are 21. 4, this is called remainder. 4 is remainder, this is quotient, this is dividend, or this is divisor. ये तो we have already discussed this in the previous videos of divisibility. Now this is the answer. 4 is the remainder. अब एक concept है, I told you the concept of negative remainder. Concept of negative remainder we have already discussed in the divisibility, but once again I am explaining you. देखो, जब आपने जैसे वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल ओनली when 25 is divided by 7, then 7 3 is 21 and this is 4, so 4 it is positive remainder. अब इसको एक और कंसेप्ट से कर सकते हैं. देखो 25 is then divided by 7, then 7 4s are 28, then it will become -3. So this is -3, this is also remainder, but it is negative remainder. But actually में I told you in divisibility lectures also, the when you will write the final answer there is no negative remainder. Always remainder answer is always in positive. तो अब आपका ये जो -3 आया, we'll have to make it positive. हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही होगा. तो वी हैव गॉट -3/7. अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर है -3/7 में डिनोमिनेटर, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो जो निगेटिव रिमाइंडर आया. तो 7 -3. ठीक, तो 7 -3, तो ये आएगा 4. तो आंसर क्या आया? 4. अब देखो आपने दो तरह से, अब जब आपने 25 को 7 से किया तो नाउ यू हैव गॉट टू वेज. एक तो था 7 3 21, डायरेक्ट 4 निकाल लिया. एक था जब आपने निगेटिव रिमाइंडर निकाला कि 7 4 28 आपने किया, और फिर यू गॉट -3, देन नेगेटिव हो नहीं सकता रिमाइंडर, तो 7 -3 इज इक्वल्स टू 4. तो 4 आंसर 4 ही आएगा दोनों से. तो देखो, टू वेज आर पॉसिबल व्हेन 25 इज डिवाइडेड बाय 7. अगर पॉजिटिव में डायरेक्ट लिखोगे तो आएगा क्या आपका? तो +4 डायरेक्ट आ जाएगा. 7 3 21, रिमाइंडर इज 4. अगर 7 4 28 इस मेथड से जाओगे तो पहले निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -3, फिर इसको पॉजिटिव बनाओगे तो फाइनल रिमाइंडर इज 7 -3 इज 4. I am telling you, teaching you this concept of negative remainder because when the calculations, when in large questions, when large number of digit will be given like 13992 something like that, then this concept of negative remainder will be very useful in making the calculation simpler. So that's why मैं आपको बता रहा हूँ, because it makes the calculation easy. Remainder is always positive in final answer. ठीक है. Now अब हमने ये कंसेप्ट सीख लिया. नाउ लेट्स बिगिन आवर अनदर क्वेश्चन प्रैक्टिस. व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 37 इज डिवाइडेड बाय 9? अभी हम कुछ कंसेप्ट प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन, कि एक बार पॉजिटिव से और एक बार निगेटिव से. तो देखो, व्हेन 37 इज डिवाइडेड बाय 9, तो एक तरीका होता है 9 4 36, रिमाइंडर इज 37 -36, रिमाइंडर इज 1. एक तो 1 आ जाएगा. एक तरीका होगा जब आप निगेटिव के कंसेप्ट से जाओगे, तो इससे बड़ा 9 5 45, 37 -45 -8, तो रिमाइंडर क्या आया? -8. बट रिमाइंडर निगेटिव हो नहीं सकता. -8 तो ये आ गया ना, बट रिमाइंडर निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये आया -8/9. तो इसको 9 से सब्ट्रैक्ट करो तो 9 -8. आंसर क्या आया? 1. क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1 इससे भी आ रहा है, इससे भी. आंसर, फाइनल आंसर पॉजिटिव ही होगा. ठीक है.
अब देखो एक और एग्जाम्पल, आई हैव टेकन अनदर एग्जाम्पल। 55/7, जब आप 55/7 करोगे तो ये देखो ये होगा 7 7 ज़ा 49, तो ये बचा 6। तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव रिमाइंडर +6 आ गया। 7 7 ज़ा 49, 55 माइनस 49 इज रिमाइंडर इज 6। अब जब निगेटिव रिमाइंडर देखोगे तो एक निगेटिव रिमाइंडर इसका क्या होगा, तो ये 7 7 8 ज़ा 56 होता है, माइनस ये आया -1। अब रिमाइंडर ये -1 आया, बट रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, -1 तो आ गया, तो -1/7 इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, 7 से -1 सब्ट्रैक्ट करके, 7 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये आ जाएगा 6। आंसर दोनों वेज में 6 ही आएगा, इसमें 6 आया, इसमें -1 आया, तो इसको पॉजिटिव बनाओगे तो 7 - 1 इज 6। एक और एग्जाम्पल से लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। 73 when divided by 8, 8 9 ज़ा 72, रिमाइंडर इज 1, देखो +1 ये। अब एक होगा जब निगेटिव रिमाइंडर से, तो 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80, 73 माइनस 80 -7, 73 माइनस 80 क्या होगा, -7 ही तो होगा। अब एक पॉजिटिव रिमाइंडर 1, ये आया -7, बट आंसर रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव, तो -7/8 इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो 8 - 7 इज इक्वल टू 1। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स, we'll go till advanced questions also. It's just that I am explaining you in the same I have done in divisibility also. First we will do the concepts, first we will understand the concepts and basic rules, after that we'll do application of those concepts through various type of questions. एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। अब देखो ये लिखा है 13/15, तो इसमें 13 15 से तो कभी डिविजिबल नहीं होगा, तो पॉजिटिव में तो यही रिमाइंडर हो जाएगा आपका +13, पॉजिटिव रिमाइंडर तो +13 ही होगा आपका। देखो बट अगर आप निगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट से जाओ तो 15 1 ज़ा 15, तो माइनस करोगे तो ये आएगा -2, तो -2 क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव, तो 15 - 2 इज इक्वल्स टू 30, आंसर 13 ही आएगा। अब ऐसे एक और ले लो, क्योंकि 15 से छोटा है ना तो डायरेक्ट आप +13 लिख सकते हो। अब देखो जैसे अगर होता 2/15, तो इसका रिमाइंडर तो ऑब्वियस है ना 2 आएगा, क्योंकि 2 15 से डिविजिबल ही नहीं होगा। जैसे लिखा हो 8/15, तो इसका रिमाइंडर तो 8 ही आ जाएगा ना, क्योंकि डिविजिबल ही नहीं होगा। अब लेकिन लिखा हो 16/15, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। कैसे, ये आपको पता है, 16 को 15 से डिवाइड करो तो 15 1 ज़ा 15, this is 1, this is the remainder, ठीक है। So we have understood the basic concept of remainder. What is remainder like? Already I have explained you this in the divisibility part. Now let's move on type 1 type of question. Type 1, देखो what will be the remainder, first question, what will be the remainder when 23 into 34 is divided by 9? What will be remainder क्या होगा when 23 into 34 दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, ठीक। अब देखो ब्रेक करो, दोनों को अलग अलग सेपरेट करो। इसको ऐसे सोच सकते हो ना, 23 इंटू 34/9 लिखा है, तो इसको ये लिख सकते हो ना आप 23/9 इंटू 34/9, तो दोनों के सेपरेट सेपरेट निकाल लो। तो जब आप इसको 23 को 9 से करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, देखो 23 को जब 9 से करोगे तो 9 2 ज़ा 18, 23 माइनस 18 क्या हुआ 5, तो ये आया +5, ठीक। अब इससे आया रिमाइंडर +5, और 34 से करोगे तो देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 3 ज़ा 27 माइनस, तो ये क्या आया सब्ट्रैक्ट करने पे 34 माइनस 27 क्या आया 7, तो ये आ गया +7, यही रिमाइंडर हो गया। अब इससे रिमाइंडर आया +5, इससे आया +7, तो और दोनों का साइन क्या है प्लस प्लस, तो दोनों को बीच में क्या क्वेश्चन में क्या दिया है मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये रिमाइंडर आया +5, ये आया +7, तो +5 इंटू +7,
तो प्लस 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 होता है साइन, और 5 7 जा 35 अपॉन 9, तो 5 × 7 अपॉन 9, 35/9। अब 35/9 को देखो आप निगेटिव रिमाइंडर अप्लाई करो तो कितना जल्दी आएगा, 9 9 4 जा 36 -1, रिमाइंडर आया -1। तो ये आ गया 9 को जब आपने इससे किया, देखो मैंने कर भी रखा है, 9 4 जा 36 -1। अब जब आपने ये किया तो -1/9 आया, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव कभी हो नहीं सकता। तो इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 - 1 8, 8 आंसर आ जाएगा। अब 35/9 को आप ऐसे भी सोच सकते थे, 9 3 जा 27, तो 35 - 27 = 8, तो आंसर 8। वैसे भी 8 आएगा, इस तरह से भी 8 आएगा, इससे कैलकुलेशन मच ईजियर हो जाती है। अब देखो ये हमने पॉजिटिव पॉजिटिव रिमाइंडर जब दोनों के लिए थे, अब एक मेथड 2 भी है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस मेथड बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर ऑल्सो, because in few questions we will use this concept because it will make our calculation simpler। देखो अब 23 को एक तो आप ऐसे सोच सकते थे, जब 9 से डिवाइड करो तो 9 2 जा 18 और माइनस करने पर 5, तो एक तो +5 में ये रिमाइंडर आ गया +5। बट अगर आप निगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट से सोचो तो 9 3 जा 27, तो 23 - 27 -4, तो रिमाइंडर आया -4। अब ऐसे ही 34 को निगेटिव रिमाइंडर से सोचो तो 9 4 जा 36, तो ये आया -2, -4 -2 डिवाइड बाय 9, इससे रिमाइंडर आया -4, इससे आया -2। अब दोनों को क्या करो, -4 × -2/9, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपके, -4 × -2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस इज प्लस, प्लीज रिमेंबर। और 4 2 जा 8, तो 8/9, तो ये कंप्लीट होगा ही नहीं डिवाइड, 8 छोटा है 9 से, तो रिमाइंडर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 9। देखो आंसर इस मेथड से भी 8 आया था, इस मेथड से भी 8 आया था। ठीक है, जो कंसेप्ट से हमारी कैलकुलेशन विच विल मेक आर कैलकुलेशन ईजियर, विल यूज दैट मेथड इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए आई हैव टोल्ड यू बोथ द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर एज वेल एज द कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the remainder when 43 into 83 is divided by 21? 43 into 83 is divided by 21। अब देखो इसको डिवाइड करो फिर इससे देख लो, तो 21 को जब 43 से करोगे तो यार 21 इंटू 2 क्या होता है 42, माइनस रिमाइंडर इज 1, 1 आ गया, देखो +1 वही लिख रखा है, जो भी ऊपर करके मैंने लिखा है ना ये रिमाइंडर है। ठीक है, और 21 को 83, तो 83/21, अब 21 4 होता है 84, तो ये आ गया -1, 83 - 84 -1, ये रिमाइंडर आ गया। तो इससे रिमाइंडर आया +1, इससे आया -1, इसमें हमने प्लस वाला कंसेप्ट से लगा लिया, इसमें माइनस वाला। अब साइन 1 × 1 क्या है, 1 × 1, बट साइन है प्लस और एक है माइनस, तो प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -1/21 ये आया। बट निगेट रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव, अगर ये 1/21 होता तो आंसर लिख देते हम क्या डायरेक्ट 1, क्योंकि ये डिवाइड होगा ही नहीं। बट यहाँ पे क्या है -1/21, तो पॉजिटिव बनाओ, तो 21 - 1 रिमाइंडर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। What will be the remainder when 121 plus 93 is divided by 8? मैंने डिवाइड बाई 8 को लैंग्वेज में लिखा था 121 + 93 इज डिवाइडेड बाई 8, तो मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, 121 इंटू नहीं है 93, इसमें इस बार प्लस कर दिया है, तो रिमाइंडर कंसेप्ट तो वही रहेगा, बस मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर देंगे। क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में हमने ये जो रिमाइंडर्स आए थे -4 -2, इनको मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। +1 और -1 को क्यों मल्टीप्लाई किया था, बिकॉज बीच में देयर वाज अ साइन ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एडिशन का साइन है समेशन का, तो वी विल ऐड। अब देखो इसको 121 को जब आप 8 से करोगे तो 8 × 15 टाइम्स जाता है क्या 120, तो माइनस रिमाइंडर इज 1,
देखो यहाँ लिख रखा है 1, ये भी लिख रखा है मैंने 15 इंटू 8 120, तो रिमाइंडर इज +1। जब 93 को 8 से करोगे तो 12 8 ज़ा 96 -3, रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे आया -3, यहाँ पे आया +1। ऊपर वाले रिमाइंडर लिखे हैं जो मैंने सर्किल करे। अब देखो ये आया 1 और ये आया -3, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 -3 करोगे तो /8 क्या होगा, -2/8। अब आप -2/8 जब आपने किया, रिमाइंडर जब भी निकालो कभी कैंसिलेशन मत करना, ठीक है, कि 1 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, नेवर डू दिस, अदरवाइज क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। -2/8 आया, अगर देखो ये 2/8 आया होता तो डायरेक्ट रिमाइंडर क्या होता 2, बट क्योंकि पॉजिटिव है, बट यहाँ रिमाइंडर -2 तो निगेटिव रिमाइंडर है, रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो कैसे, 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 2 = 6, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। अब देखो what will be the remainder when 130 plus 147 is divided by 11, 130 plus 147 is divided by 11, सेपरेट सेपरेट रिमाइंडर निकाल लें। अब देखो 11 का इंटू 10 होता है 11 10 ज़ा 110, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 11 इंटू 12 क्या होगा, एक बार और 11 जोड़ो 132, ठीक है। तो 11 इंटू 12 क्या होगा 132 होता है, ठीक है। अब देखो 130 को जब आप 11 से करोगे, 130 को जब 11 से, तो 11 इंटू 12 132, रिमाइंडर माइनस करोगे, रिमाइंडर -2, देखो वही लिख रखा है -2 आ जाएगा। जब 147 को करोगे तो 11 से क्या आएगा, देखो 11 1 ज़ा 11, ये बचा 3, ये 7, 11 3 ज़ा 33, तो 37 - 33 क्या आया 4, 37 - 33 क्या आएगा 4, तो रिमाइंडर इसमें आएगा +4, इसमें -2, बीच में क्या समेशन का साइन है, देखो एडिशन, तो आपको क्या करना है -2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -2 + 4 बाई 11, ये आ जाएगा 2/11, प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2, तो 2/11 इज इक्वल टू 2, क्योंकि जाएगा नहीं तो रिमाइंडर इज 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ही अनदर क्वेश्चन। नाउ अब देखना थोड़ा सा, नाउ वी आर रेजिंग द लेवल, slowly slowly we'll raise the level of the questions, variety of the questions I will include। देखो when 127 into 139 into 12653 into 79 into 18769, इस नंबर को जब आपने 5 से डिवाइड करोगे तो कह रहा व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर के कंसेप्ट में जब आपको ऐसा रूल आ जाए तो व्हाट यू हैव टू डू, 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो यार। अगर 5 से कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा, अगर 10 है, अगर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट हम ऐसे में क्या करेंगे, जैसे 9 भी होता है यहाँ, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे करो, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से भी क्वेश्चन इसीलिए ईजी हो जाते हैं। अब देखो हमने 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या सीखा था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 आप एक बार खुद से रिकॉल करो, क्या था डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो ही नंबर इज डिविजिबल बाय 5। I have already explained you this concept, so those of you have not watched the previous videos of divisibility, please go and watch this, otherwise you will find difficulty in facing these questions। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल था, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 जब वो लास्ट डिजिट 0 हो या लास्ट डिजिट जो हो 5 हो, ठीक है। आई विल शो यू दिस ऑल्सो, लेट मी शो यू, वी हैव डन इन द फर्स्ट पार्ट। I'll show you this later because it's in another PDF which I have taken. It's not in this. I will show you after the video. I will show you in the, you already must be knowing यार, I have explained you the divisibility rule of 5 कि लास्ट डिजिट, अगर नहीं भी पता तो आप सीख लो, चलो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन।
अगर लास्ट डिजिट कोई भी नंबर है तो उसकी 0 हो या 5 हो, देन ओनली नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब देखो, अब ये नंबर है आपका पूरा, अब इसको 5 से करो तो सेपरेट सेपरेट, इसको 5 से देखो, इसको 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 और इसको। ठीक है, अब रिमाइंडर सब में क्या बचेगा? तो यार जब 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं तो ये नंबर है 127। ठीक है, हम डायरेक्ट इसमें लास्ट डिजिट को चेक करें ना, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ही वही होता है। देखो मैंने लिख भी रख दिया, इसीलिए आई हैव ऑल्सो रिटन चेक ओनली लास्ट डिजिट। क्यों? क्योंकि 5 के डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट ही चेक करते हैं। तो डायरेक्ट लास्ट डिजिट को चेक करो, तो लास्ट डिजिट है 7, तो 7 है, 7 को 5 से करोगे तो क्या आएगा? 5 वन ज़ा 5, तो रिमाइंडर विल बी 2, तो रिमाइंडर इज +2। 9 है, 9 को 5 से करोगे जब लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं सिर्फ, 5 टू ज़ा 10, रिमाइंडर -1। ठीक है, रिमाइंडर -1। अब 5 को 3 से करोगे तो 3 लास्ट डिजिट सिर्फ 3/5 जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर इज 3 आ जाएगा। 12653 नंबर है ना पूरा ये, बट इसमें से हम सिर्फ लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि हम 5 से डिविजिबल कर रहे हैं, तो हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं, तो +3। 9 से देखो, लास्ट डिजिट 79 में लास्ट डिजिट क्या है? 9। 9 को करोगे क्या? वही सिमिलर, 5 टू ज़ा 10, तो रिमाइंडर -1, तो इसमें रिमाइंडर -1, इसमें +3, इसमें -1, इसमें +2। फिर इसमें 18769, लास्ट डिजिट देखो क्या है? सिर्फ लास्ट डिजिट 9। 9 5 टू ज़ा 10, -1, रिमाइंडर इज -1। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गए? +2 -1 +3 -1 -1। अब बीच में क्या है? सबके प्रोडक्ट है, देखो प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, 6 वन ज़ा 6, 6 वन ज़ा 6, तो ये आएगा 6। साइन क्या आएगा? प्लस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस, ऑल एवरीवन मस्ट बी नोइंग दिस। प्लस प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, एक माइनस बचेगा, तो और ये आया 3 टू ज़ा 6 और इंटू 1 6, तो -6/5। अब इसको आप ऐसे लिख लो, -6/5। अब 6 को जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6/5 को करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1, 5 वन ज़ा 5, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो अब रिमाइंडर -1 लगा हुआ है, और 6/5 को ऐसे करो तो ये वैल्यू आएगी 1, तो ये आ जाएगा -1/5। बट अगर ये 1/5 होता तो आंसर हो जाता 1, बट यहाँ पे -1/5 है, रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव, तो क्या करोगे? पॉजिटिव बनाओगे -1/5 को। कैसे बनाओगे? इससे सब्ट्रैक्ट करो, 5 - 1 4, तो रिमाइंडर इज 4। 4 इज द आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। वॉट विल बी द रिमाइंडर व्हेन, अब नंबर आपके पास ये है 195 इंटू 1958 इंटू 19 इज डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, देखो, अब देखो इसको कैसे करोगे? 195 को जब 19 से करोगे तो देखो क्या होगा? 195 को जब 19 से कर रहे हो, इस पे देख रहे हैं, तो यार 195 में 19 से करने पे ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा, क्योंकि देखो वैसे भी आप कर सकते हो, 19 से करोगे तो 19 10 ज़ा 190, तो रिमाइंडर 5 बचेगा। यही किया है मैंने, वह 5 बचेगा, देखो +5 बचेगा, ऐसे भी कर लो, बट ऐसे भी सोच लो ना, 19 ये तो चला जाएगा पूरा 19 से, तो 5 बचेगा, तो वही +5 रिमाइंडर लिख दिया। अब इसको देखो, ये 19 तो पूरा चला जाएगा 1958 में, 19 से करोगे तो ये तो पूरा चला जाएगा। 58 को चेक कर लो, 19 3 क्या होता है? 19 3 इज 57, तो 58 है, ये 57 है, तो 58 57 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1, तो रिमाइंडर क्या बचा? ये तो पूरा चला गया, 58 को चेक कर लो, 19 3 57, तो रिमाइंडर बचा +1। अब इसमें देखो 1975, ये 19 तो पूरा 19 से चला जाएगा, तो इसको सिर्फ चेक कर लो, 19 4 क्या होता है? 76, ये है 75, ये है 19 4 76, माइनस करोगे तो क्या आएगा? -1।
अब इसमें रिमाइंडर क्या आ गया, -1। 170 इसको चेक कर लो, तो 19 इंटू 9 क्या होता है, 9 9 ज़ा 81, 171, तो ये है 170। वही किया है मैंने, देखो जल्दी कराऊँ, 19 इंटू 9, तो ये 171, तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 जब सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वही लिख दिया। एक बार आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वंस अगेन। 195 में ये तो हो ही जाएगा 19 से डिवाइजिबल 19, तो डायरेक्ट 5 को चेक कर लो, 5 + 5 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो 19 10 190, बट ऐसे सीखो, इट विल मेक कैलकुलेशन मच ईजियर एंड फास्टर। अब 1958 में ये तो चला ही जाएगा, 58 को चेक करो, 19 3 ज़ा 57 बचा +1, 19 तो चला ही जाएगा, 75 बचा, 19 4 ज़ा 76, तो -1, 19 इंटू 9 171, तो 170 है तो -1। अब रिमाइंडर क्या आ गए, +5 +1 -1 -1। अब देखो 5 इंटू 1 5 इंटू 1 इंटू 1, तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 1 इंटू -1 इंटू -1। अब प्लस प्लस का साइन तो प्लस होगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, -1 इंटू -1 क्या होगा, +1, तो 5/19 आ जाएगा ये, और ये डिविजिबल होगा नहीं, पॉजिटिव है, तो आंसर विल बी 5। ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 1750 इंटू 1748 इंटू 1753 इंटू 70 इंटू 35 इज डिवाइडेड बाई 70। वही क्वेश्चन है। अब देखो रिमाइंडर क्या होगा, सिमिलर क्वेश्चन, डायरेक्ट कर लो यार। देखो 1750 है पहला, बाय 17, वही उसी तरह ये तो पूरा चला जाएगा, डायरेक्ट इसको चेक करें ना, लास्ट 2 को। देखो इसमें 17 3 ज़ा क्या होता है, 17 3 ज़ा 51, तो ये है 50, तो ये क्या आ जाएगा, जब 50 को 51 से करोगे तो ये आ जाएगा क्या, सब्ट्रैक्ट करने पे -1। ठीक है, अरे जस्ट अ सेकेंड, जब 50 को आप 50 को 51 से करोगे तो -1 आएगा, वही लिखा है, रिमाइंडर इज -1। अब 1748 को देखो, ये तो पूरा चला जाएगा, तो ये क्या होगा, 17 3 ज़ा क्या होता है, 17 3 ज़ा 51, ये है 48, तो 48 माइनस 51, रिमाइंडर क्या बचेगा, -3। देखो वही लिखा है -3, ये तो कंप्लीट चला जाएगा, सिर्फ 53 को चेक कर लो, 17 3 ज़ा 51, तो 53 माइनस 51 +2, देखो +2, 17 4 ज़ा 17 इंटू 4 इज 68, ये है 70, तो ऐसे ही कर, वही कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे 17 4 ज़ा 68, 70 माइनस 68 2, ठीक है, +2। अब देखो 70 35 है, 17 2 ज़ा 34, क्या बचा रिमाइंडर, +1, 35 माइनस 34 क्या बचा, +1। अब रिमाइंडर्स क्या क्या आ गए देखो, -1 -3 +2 +2 +1, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये आ गया 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो 12 साइन क्या है, ये तो प्लस 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 के साइन है तीनों, ये तीनों प्लस के साइन है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 12 आ जाएगा, तो +12/17, ये जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि ये छोटा है, तो रिमाइंडर विल बी 12 आंसर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 1750 + 1, अब देखो अभी तक प्रोडक्ट था बीच में, क्वेश्चन वही है, बस अब एडिशन का साइन लगा दिया, तो देखो सेम क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। अब 1750 है, इसको अब आप एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करो, एंड यू शुड ट्राई इट बाय योर ओन सेल्फ ऑल्सो। अब देखो ये 17 तो पूरा चला जाएगा, तो इसको ज़रूरत नहीं चेक करने की, 50 17 3 ज़ा 51, तो 50 माइनस 51, रिमाइंडर क्या बचा, -1, वही लिखा है, इसको चेक कर लो, ये तो पूरा चला जाएगा, 48 17 3 ज़ा 51, 48 माइनस 51 -3, 17 3 ये पूरा चला जाएगा, 52 को चेक करो, 17 3 ज़ा 51, 52 माइनस 51 +1, इसको चेक करो, 17 4 ज़ा 68, 70 माइनस 68 +2, 35, 17 2 ज़ा 34, 35 माइनस 34 +1, रिमाइंडर क्या आ गए, -1 -3 +1 +2 +1। अब सबको ऐड है बीच में, मैं तो मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड कर दो, तो -1 -3 +1
+2 +1/17। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल, 2 + 1 3, ये 3 कैंसिल, तो 0/17, रिमाइंडर इज 0। ठीक, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Let me will do from here in the next video. Let me do the previous 3 questions of divisibility which I in the previous video I gave you for homework. I said that try it by your own self. I will discuss. So let's discuss those questions. 45, 46, 47. ठीक, आपको I hope you all guys must be remembering the rules what I explained. A की power n plus b की power n when n is odd, or a की power n minus b की power n. That's why I am saying watch the previous video. Now we are discussing the questions of divisibility. Remaining part of remainder theorem we'll continue in the next video, because I don't want to keep the video very long. 49 to the power 15 minus 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये किस नंबर से डिविजिबल होगा? अब देखो 49 की पावर 15 और 1 को लिख सकते हो 1 की पावर 15, 1 को 1 की पावर 15 लिख सकते हो। अब देखो ये क्या हो गया, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, ये हो गया a की पावर n माइनस b की पावर n फॉर्म हो गई। और n यहाँ पे क्या है, n इज 15 और 15 इज ऑड। तो ऑड ऑड के लिए हमने क्या सीखा था, 15 है ऑड है तो ऑड कोई छोटा रख के देख लो, हमने ऑड क्या रखते थे 3, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब रख लो। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर क्या होता है आपको याद होगा, a माइनस बी होता है। a माइनस बी, a यहाँ पे क्या है, a है 49, b है 1, 49 माइनस 1, a माइनस बी निकालो, 49 माइनस 1 48। अब ये पूछ रहा है किससे डिविजिबल होगा, तो देखो 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, अगर आप ऑप्शन चेकिंग करो तो सिर्फ 8 सिक्सा 48 होता है, तो डायरेक्ट 48 को 8 डिवाइड कर देगा, क्योंकि हमारा 48 आया। अब ये किससे डिविजिबल है, 8 से ही होगा, 29 से होगा नहीं, 51 से भी नहीं होगा, 50 से भी नहीं होगा, सिर्फ 8 से होगा, तो आंसर इज डी पार्ट। 46 आई विल एक्सप्लेन इन द लास्ट। लेट मी डिस्कस 47 क्वेश्चन। देखो 23 की पावर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग, अब पूछ रहा है विल नॉट डिवाइड, 23 की पावर 10 माइनस 1024। अब 1024 को हम क्या लिखते हैं, ये आप एक बार, आई होप एवरी सम ऑफ यू मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बट इफ एनीवन डोंट नो देन 2 की पावर 10 इज 1024। इतना आपको बेसिक याद होना चाहिए दैट 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 क्यूब इज 8, 8 2 4 इज 16, 32 64 128 256 512, इतना आपको रिमेंबर कर लेना आप। तो 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। तो इस क्वेश्चन को 1024 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, तो ये आ जाएगा 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब ये क्या फॉर्म बन गई, a की पावर n माइनस b की पावर n। n क्या है, n इज 10, 10 क्या है इवन, 10 इज इवन, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके दो फैक्टर होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या फैक्टर थे, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना। अब a प्लस बी क्या होगा, a है 23 b है 2, तो a प्लस बी हो जाएगा 25, a माइनस बी हो जाएगा 21। अब देखो आपके दो फैक्टर आ गए 25 21। अब पूछा है कौन सा विल नॉट डिवाइड, देखो 3 तो कर देगा, 3 इसको डिवाइड कर देगा ना, तो ये आंसर हो नहीं सकता, 3 7 जा 21, तो ये नहीं होगा। 25 को 5 कर देगा, 5 5 जा 25, तो ये भी नहीं होगा। 7 को 7 3 जा 21, ये 21 को कर देगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ 4 ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमारे दोनों फैक्टर है ना, इसलिए हम दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, और नहीं लगेगा 25 और 21 नहीं, इट इज़ रॉन्ग। 25 एंड 21 दोनों चेक करो, कोई भी एक हो जाएगा, क्योंकि दोनों फैक्टर है ना, तो 4 किसी को नहीं करेगा, तो आंसर इज डी पार्ट। अब देखो 46 क्वेश्चन, this was a little bit common, not typical but little bit tricky, so I'm explaining this। देखो अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड। अब 3 नंबर दे दिए, 29 की पावर 47 प्लस 23 की पावर प्लस 17 की पावर। अब देखो इसका एक, वैसे तो मैं a प्लस बी प्लस सी का भी क्यूब का फैक्टर बता देता, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट। I want just you to focus on the only 3 formulas which I told you. A square minus b square, a cube plus b cube,
एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी से क्वेश्चंस बना हुआ, ठीक है। तो देखो हम इसको ब्रेक करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो कौन सा कंप्लीटली डिवाइड करेगा, आप ऑप्शन चेकिंग करो। देखो 21 जब आप करोगे तो 21 क्या किसको किसको करेगा, आपको पता है यार कंप्लीटली इसी को नहीं करेगा, 21 29 को ही नहीं करेगा, तो क्वेश्चन खत्म। अब आप 22 में भी देखो तो 22 नहीं करेगा, ये भी खत्म ये भी खत्म। अब 23 को देखो, 23 इसको तो कर देगा, जब आप 23 चेक करोगे 23 इसको तो कर देगा। अब इसको तो कर दिया 23 ने। अब आप एक चीज़ चेक करो, ये तो हो गया 23 से डिविजिबल है ये वाला पार्ट। हम इन दोनों को क्लब कर लेते हैं, इन दोनों को देखो मैंने इधर क्लब कर दिया है। अब इसको आप सेपरेट चेक कर लो, लाइक 29 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 अपॉन 23, और इसको अलग से चेक कर लो 23, ये तो कर ही देगा क्योंकि। अब इसको चेक करने के लिए क्या कर लो, क्वेश्चन आपका ये हो गया 29 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47, 23 से होगा कि नहीं। अब इसको आप क्या लिखोगे, ये है ए की ऊपर न्यूमरेटर, इन दोनों को सिर्फ देखना, सिर्फ 2 पर फोकस करना है, 29 की पावर 47 प्लस 17 की पावर, ये है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अब एक चीज फोकस करो यहाँ पे, अब एन यहाँ पे क्या है 47, 47 एन है ना, 47 क्या है ऑड, 47 इज ऑड, तो ऑड के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब देख लो क्या फैक्टर होता है ए प्लस बी, तो ए क्या है 29 प्लस 17, तो 29 प्लस 17 क्या आएगा 46, अब 46 आएगा। अब 46 जो आया जब आपने इसको ब्रेक करके करा तो ये आया 46। अब यार 46 तो 23 से डिविजिबल हो जाएगा ना, 23 इन दोनों को ब्रेक करके आपने इसका फैक्टर निकाल दिया, सिंप्लीफाई करा जैसे हम लोग करते थे 46। अब 46 तो 23 इंटू 2 46 होता है, तो अब ये इसको डिवाइड कर देगा और इसको भी कर देगा, तो 23 विल बी द आंसर। बस यही किया है, इन दो को क्लब कर लिया, 23 इसको तो कर ही देगा, तो 24 नहीं करेगा, इसी को नहीं करेगा, किसी को नहीं करेगा 24 तो खैर, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस नाउ द टॉपिक ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस अगेन, एक्चुअली वी हैव नॉट डिस्कस मच, बट एक बार आप दोबारा से इसको प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन and you will also get the notes at the last when the topic will be completed. You will get the notes and practice this, and we'll continue further in the next video. Thank you.